So first of all, let me introduce myself. I am Dr. Adil Nasir, Associate Professor and Chairperson, Department of Management Sciences, Lahore College for Women University. I am specialized in finance and management. I have a 6 years of teaching experience at Lahore College for Women University. Overall, I have 15 years of teaching experience in Punjab University, Lahore College for Women University, and Punjab College Group of Colleges in UCP. Uh, my research is focused on basically on finance, corporate finance, green innovation, Islamic finance. I have 40 published articles in JCR Impact Factor, ABS 3 Plus, and ABDC. I supervise many students, and also related to this topic today at my university, we started our entrepreneurial gala every year, in which very renowned industrialists come and they evaluate our projects, which are very business ideas from students. So what my experience is and how we are going to establish this relationship with industry and academia, this is very important for higher education departments, and to establish the relationship. और उसमें कोशिश करनी है कि किस तरह आजकल के अदारे और जो भी आजकल की नीड है फॉर द पीपल, द सीईओज एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, के वो किस चीज को और क्या रिक्वायर करते हैं स्टूडेंट से. So sequence of presentation is, first we introduce the industry and academia linkages, then what are the challenges in this linkage, किस तरह हम इस रोल को फोस्टर कर सकते हैं to develop the entrepreneurship. Three-tiered cone model that is used in many developed countries nowadays. Framework collaboration like NDA, MOU, MRA, SPA. These are the various collaborations which we can do with industry in order to train our students according to industry. Key factor to successful industry academia linkages, and how can we overcome the challenges which we are going to discuss in industry academia linkage. Research advancement through collaboration, building a stronger link for future generation, and future of industry academia linkage. सो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान में हम एक लिंक क्रिएट करते हैं जो इनोवेशन, रिसर्च और प्रैक्टिकल वर्कफोर्स की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ना सिर्फ हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में अवेलेबल जो हमारा वर्कफोर्स होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करते हैं इसके अंदर. ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है, आजकल की बहुत बड़ी नीड है, बिकॉज द थ्योरी which we teach in a class, it's not bridging up the gap with industry. So when we go to the real world applications, there are a lot of gap between that. What is theoretical knowledge we are giving to our students, and what is the real world application? It is very deep difference between both of them. बट उसके लिए कुछ अदारों ने बड़ा काम किया है, जिसमें जैपिस्ट ने एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ काम किया, जिसके अंदर उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया, और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर उन्होंने काम किया. अदारों से यही रिक्वेस्ट है कि वो भी, और हमारे जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि वो अपने करिकुलम ऐसे डेवलप करें और वो अपने स्टूडेंट को ऐसे ट्रेन करें कि वो इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के ऊपर. बिकॉज जो हमारा विजन 2030 है वो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी बहुत रेलिवेंट है. और उसके अलावा उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जिसके अंदर हमारे पास एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है. ये सारी चीज़ें हर फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है. इसी के लिए इसी में एमआईटी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसने टेस्ला के साथ काम किया और अभी तक वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं. उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एमआईटी में रिसर्च होती है, जिस रिसर्च को टेस्ला अडॉप्ट करता है और अपनी ये बहुत ही एडवांस किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आजकल बना रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस गैप को फिल करें. सो गैप कैसे फिल होता है कि हम इन्हेंस करते हैं नॉलेज ट्रांसफर को. यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च वाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड प्रैक्टिकल इंसाइट. तो ये एक किस्म का आपकी इंडस्ट्री एक मशीन चलती है, जिसके अंदर एकेडेमिया क्या प्रोवाइड करती है, रिसर्च और इनोवेशन भी प्रोवाइड करती है. इंडस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर आती है. जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं, जब दोनों मिलते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर है कि आपका वर्कफोर्स डेवलपमेंट भी इनहैंस होता है. जैसे ही एकेडेमिया रिसर्च लेकर आएगी, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर आएंगे, ये मिक्सअप होगा,
तो आपकी वर्कफोर्स भी डेवलप होगी, आपके स्टूडेंट्स भी डेवलप होंगे, उनको भी इंडस्ट्री की नीड को पता चलेगा, इंडस्ट्री को हमारी रिसर्च का पता चलेगा। तो इसमें हमारी काफी जो है वो पार्टनरशिप, जैसा गूगल ने जो है वो पार्टनरशिप की हुई है यूनिवर्सिटीज के साथ। गूगल क्या करता है, अपने सर्टिफिकेशंस देता है, और उस सर्टिफिकेशन के बाद ना सिर्फ उनकी वर्कफोर्स डेवलप होती है बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी डेवलप होते हैं, जिसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड काफी क्लाउड बेस्ड उनके ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स अभी तक अपने आप को, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी भी इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, डेवलप होते हैं और अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा जो मेन फोकस इस टाइम पर और अगले 5 से 10 सालों में जो होना चाहिए, वो वर्क फोर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लिंकेज बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। सो चैलेंज क्या आता है बिटवीन व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज? सबसे पहले जो मिसअलाइनमेंट ऑफ गोल्स हैं हमारे, और वो हमारे डेफिनेटली यहाँ पर हैं। वो अलाइनमेंट ऑफ गोल कैसे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, उनको चाहिए स्किल बेस्ड वर्कफोर्स चाहिए, जिसके ऊपर अब आप देख भी रहे होगे आजकल काफी ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिसके अंदर जब स्किल को डेवलप किया जाता है तो इंडस्ट्री की नीड को पूरा किया जा रहा है उसको लेकर। एकेडेमिया जो है वो ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उनकी इतना फोकस नहीं है। जबकि हमें अपने करिकुलम्स को अब ऐसे डिजाइन करना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि उनके अंदर ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव यू बेसिस ऑफ नॉलेज, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से अब ये दोनों चीजें जब प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं, इंडस्ट्री की नीड डिफरेंट है, एकेडेमिया की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज जो हैं अब आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाएं, ना सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे कम्युनिकेशन बढ़ाएं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी अगर वो अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो लिंक क्रिएट होगा कि क्या इंडस्ट्री को चाहिए और क्या यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और या हमारे जो अदारे हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वो क्या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर हमारी कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको फिल करने की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, अदारों का जो कल्चर है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं, उसमें भी काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब एकेडेमिया जो है वो मोस्टली ऑपरेट करती है लॉन्ग टर्म में, उनके गोल्स होते हैं कि स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उनके अंदर नॉलेज बढ़ाया जाए, उनको उनको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएं। जबकि जो इंडस्ट्री है वो ज्यादातर काम उनका फोकस होता है शॉर्ट टर्म में, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनके ऑब्जेक्टिव ही अर्निंग होता है, अर्निंग मनी होता है। तो जब आपने उनको फोकस करना है तो उनकी जो नेचर है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो ज्यादातर रहता है कि अभी हमें क्या फायदा दे सकती है वर्कफोर्स, जबकि एकेडेमिया का फोकस होता है कि हाउ टू डेवलप द वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, के वो जनरेशंस टू जनरेशंस कैसे डेवलप करते हैं, नॉलेज बेस कैसे इंक्रीज करता है, ओवरऑल इकोनॉमी की जो नॉलेज बेस है वो इनहेंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये दोनों फोकस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है इंडस्ट्री एकेडेमिया, तो लिंक क्रिएट करना है, लेकिन उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि अब मेन फोकस हमारे अदारों का और हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का है कि वो अब जॉब्स के ऊपर फोकस, बच्चों को ये ना तैयार करेंगे वो जॉब्स के लिए तैयार हों, बल्कि उनको इसके लिए तैयार करें कि वो एक नया इनोवेटिव आइडिया लाकर और यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को सर्व करें, और बल्कि एक नए बिजनेस आइडियाज को लेकर आए, इंटरप्रेन्योर्स डेवलप हों। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, मोस्टली इनोवेशन होती है और इसके अंदर रिस्क लिया जाता है। सो जॉब क्रिएशन मतलब इस इस प्रोसेस के थ्रू जॉब क्रिएट होती है। अब अगर इकोनॉमी के अंदर मजीद जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और इनका फोकस होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, ताकि वो आगे जॉब्स क्रिएट करें, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। और अगर इनोवेशन आती है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो उसके साथ ही है। तो जिस देखें पिछले रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह ऊपर ने पूरी दुनिया पे फोकस किया था, तो पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने क्रीम और बाइकिया का जो है वो इन्वेंशन किया था, और वो तकरीबन क्रीम
को बीट किया था हमारी मार्केट इकोनॉमी में। एंड पे ऊबर चूंकि एक बड़ी मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी बिजनेस था, जिसकी वजह से इट वाज अ ब्रांड, बट उन्होंने खरीद लिया क्रीम को। लेकिन बाय द वे क्रीम वाज बीटिंग ऊबर whenever it was run by the पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स। और अच्छा, और पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप्स जो हैं बहुत ज्यादा आजकल जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, और बीट कर रहे हैं इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स को, बिकॉज दे नो द कल्चर, people, they know how to sell. So these are all the skills which we need to incorporate in our entrepreneurs, so that we can not only play in our local markets but international markets as well. सो ग्लोबल एग्जांपल में आप देखें, अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुआ था, आज एक बहुत ही ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट बन के सामने आया हुआ है। और अपने वर्टिकल उन्होंने इंटीग्रेशन किया है, ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया है, बुक स्टोर तक ही नहीं रहे, बल्कि वो जो है पूरी दुनिया में हर किस्म की टेक टेक को बेचने में और हर चीज सेल आउट कर रहे हैं आजकल। सो दैट इज द So how can we, what is the role in fostering entrepreneurship? हम incubators, universities या colleges में incubators को लेकर आए। यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, ताकि वो हर साल या हर सेशन में अपना जो है बिजनेस का आइडिया लेकर आए। और वो जो है इसमें हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं, मेंटोरशिप्स दे सकते हैं, अपने करिकुलम में चेंज लेकर आ सकते हैं। रिगार्डिंगली एकेडेमिया जो है पार्टनर के तौर पे आ सकता है। मतलब आपने अगर चूंकि मैं मैनेजमेंट साइंस फील्ड से हूँ, बट कैन आई ऑफर टू द इंडस्ट्रीज दैट कि मैं ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाऊँ यहाँ पे बच्चों को, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा कर तो मैं कहूँ जी मुख्तलिफ अदारों को कहूँ कि हम लोग आपको HR बिजनेस पार्टनर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आपको जो है वो सर्व करेंगे एज अ ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस। इसी तरह मार्केटिंग पढ़ाकर हम लोग मुख्तलिफ अदारों को सेल्स एग्जेक्टिव्स दे सकते हैं। ना सिर्फ उनको कह सकते हैं कि हायर करें, बल्कि हम अपने अदारे में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर हम उनको सर्विस एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे ज्वाइन करते हैं। सो दैट इज द पॉलिसी मेकिंग। इसके अंदर काफी ज्यादा पॉलिसी मेकिंग भी इन्वॉल्व है। तो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने अदारों में बैठकर एक ऐसा मेंटोरशिप का प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, जिससे हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो हैं इंडस्ट्री की उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको साथ मिलाएं और उनसे कहें व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, सो दैट वी कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो एकेडमी रोल इन बिजनेस पार्टनर के तौर पे हार्वर्ड ने इनक्यूबेशन लैब शुरू किया था, हब वे स्टूडेंट और मनाया फैकल्टी वो कोलैबोरेट करते थे कि वो डेवलप करें स्टार्टअप्स को, और उन स्टार्टअप्स को बड़ा बैकअप दिया जाता था फ्रॉम द इंडस्ट्री। बल्कि सपोर्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ सकता है इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी, और ह्यूमन रिसोर्स की सपोर्ट भी आ सकती है। ठीक है, अभी रिसेंटली HEC ने जो है वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर जो लोग CEOs हैं उनको हम एज अ लेक्चरर्स के तौर पर या एज अ प्रोफेसर्स के तौर पर अपने पास हायर भी कर सकते हैं। इट फोस्टर पार्टनरशिप्स वेयर एकेडेमिया अप्लाइज रिसर्च टू सॉल्व चैलेंजेस इन मार्केटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वेरियस। और ना सिर्फ इन फील्ड्स के अंदर, बल्कि दे कैन ऑल्सो, अगर कोई केमिस्ट्री की फील्ड से है वो भी कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, पेटेंट लेकर आते हैं, मार्केट कैसे करना है, सारी चीजें मुख्तलिफ अदारे मिलकर इसको लेकर चल सकते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफी ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं जिसके अंदर वो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब के अंदर जो है अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इंक्यूबेटर सेंटर्स को सपोर्ट भी किया है, फाइनेंस भी किया है, फंड भी किया है, और अभी भी कीप ऑन डूइंग दैट। हर यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बन चुका है, जो कि ना सिर्फ बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग रिसर्च फैसिलिटीज एज वेल फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर कॉलेजेस to do better research and make the business more reliable, more innovative and more sustainable. ठीक है, प्रोमो किस तरह हम लोग कर सकते हैं इसको, हम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके अंदर हम स्किल्स को डेवलप करें, नॉलेज फॉर करियर प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी और स्किल डेवलपमेंट भी होगी। जिस तरह अब यहाँ पर हमारे पास, जिस तरह मैंने अभी गूगल की एग्जांपल दी थी, गूगल में IBM भी
जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे कॉलेजेस भी मिलकर और हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी मिलकर क्या कर सकते हैं, इस तरह के कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग पे हो और वो स्किल्स को डेवलप करें अकॉर्डिंग टू आवर इंडस्ट्रियल नीड्स। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, आप अगर आप देखेंगे कि बाहर के स्कूल सिस्टम जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड हैं, 3 टियर्ड कोन मॉडल यूज करते हैं वो लोग। इसमें 3 किस्म के हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। एक पहले आता है इनएक्टिव मॉडल जिसको हम एक्शन बेस्ड भी कहते हैं, और उसके बाद आइकॉनिक मॉडल जिसको इमेज बेस्ड भी कहते हैं, और लास्ट में हमारे पास सिंबॉलिक जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर होते हैं, वो होता है हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज सिंबल बेस्ड। लैंग्वेज और सिंबल बेस्ड तो तीसरे लेवल पे आता है। पहले तो हम इनएक्टिव में आते हैं। इनएक्टिव में अंदर अगर आप देखें कि हमारे जो इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स हैं उसमें अगर आपका प्ले ग्रुप अगर आ जाता है तो वहां पर जो बच्चे होते हैं वो सिंबॉलिक नहीं पढ़ते, वो इमेज बेस्ड नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, उनको वो पूरा एक्शन के साथ उनको हर चीज सिखाते हैं। अगर उन्होंने ब्लॉक्स रखे हैं तो 5 ब्लॉक्स रखे हैं, 2 ब्लॉक्स हटा लेंगे और पूछेंगे कितने ब्लॉक्स रह गए। तो व्हाट दे डू, दे लर्निंग बाय एक्शन, लर्निंग थ्रू एक्शन है उनका, फिजिकल इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ। और इसके अंदर जो है बहुत बेसिक जो है जिसके अंदर हम कोई काम करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सेकंड है हमारे पास आइकॉनिक इमेज बेस्ड लर्निंग होती है, जो हम यूज करके उसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम सीखते हैं, लर्निंग हासिल करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास विजुअल इमेजरी होती है, हम ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स कॉन्सेप्ट्स को इमेज के थ्रू जो है लोगों को दिखाते हैं और उससे फिर इमेज के थ्रू वो सीखते हैं। और ये बहुत ही बड़ा लर्निंग सोर्स है जिसकी वजह से ये याद भी रहता है ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन माइंड को रिमेम्बर भी करता रहता है इसको, इस आइकॉनिक बेस के ऊपर। सिंबॉलिक जो है वो तीसरा लेवल है जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये होता है कि वो चीजें जो दिमाग में नहीं आती लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है। एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वेयर इंडिविजुअल यूज लैंग्वेज एंड सिंपल टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड प्रोसेसेस। हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ये इस लेवल पर लेकर आया जाता है लोगों को जब रिसर्च करवाई जाती है। लेकिन हमें इन तीनों को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर बेसिस बनानी है तो इनएक्टिव से लेकर जाना है, फिर आइकॉनिक की तरफ और फिर सिंबॉलिक की तरफ जाना। ये एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है स्किल डेवलपमेंट की। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? हमारे पास इन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री और फॉर एंटरप्रेन्योर्स इनएक्टिव क्या हो सकता है कि हम लोग एकेडेमिया में ये फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हम इंटर्नशिप्स करवाएं, लाइव प्रोजेक्ट्स करवाएं, हैंड ऑन वर्कशॉप्स करवाएं स्टूडेंट्स को ताकि वो काम करें तो उन्हें स्किल्स डेवलप हों। इंडस्ट्री क्या कर सकती है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उनको दे सकती है कि इसका डाटा एनालिसिस करो, ये प्रोडक्ट है इसकी टेस्टिंग करो। तो इंडस्ट्री ये चीजें प्रोवाइड कर सकती है कॉलेजेस को। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स लर्न बाय डूइंग, क्या कर सकते हैं वो बिजनेस चला सकते हैं, सेटिंग अप द बिजनेस एंड मैनेजिंग ऑपरेशन इन अ रियल टाइम हेल्प के, ताकि उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे क्या चीज चल सकती है क्या चीज नहीं चल सकती। जितने ई कॉमर्स बिजनेस हैं वी एंटरप्रेन्योर दे स्टार्ट बाय डूइंग इट, तो उनको पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चल रही। आइकॉनिक के अंदर यूनिवर्सिटीज विजुअल मॉडल्स प्रोटोटाइप्स यूज करते हैं, सिमुलेशंस यूज करते हैं डेफिनेटली। और उसके अंदर लेकिन वो एक चीज है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को लेकर आए, उनके मॉडल्स लेकर आए, उनके प्रोटोटाइप्स लेकर आए, केस स्टडीज लेकर आए, ताकि वो देख कर जो है वो पढ़ कर, लेकिन केस स्टडीज हमारे तीसरे में ज्यादा चला जाएगा तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को फोकस किया जा सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की जो है पिक्चर्स, उनके मॉडल्स की किस तरह मशीन के थ्रू चीजें बनती हैं वो दिखाकर स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है। इंडस्ट्री भी सिमुलेशंस को लेकर चल सकती है, डाटा विजुअलाइजेशन को, जो हम चीजें प्रोवाइड करते हैं उनको लेकर, जिस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, इसके अंदर बाकी की किस तरह हम लोग एक प्रोडक्ट शुरू से लेकर एंड तक पहुंचता है और वो कॉलेजेस को दे, यूनिवर्सिटीज को दे कि कैसे हम लोग ये काम करते हैं और विजुअलाइजेशन के थ्रू। और एंटरप्रेन्योर्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू और डेफिनेटली मार्केट की पोजीशनिंग, कस्टमर के पर्सोनास को देखकर। और डेफिनेट हम इनका जो है वो एक मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं
उसके अलावा हम लोग जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, जिसके अंदर इमेज डायग्राम्स को यूज करके वो बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, एक कैनवस होता है, मार्केटिंग कैनवस होता है, वो दिया जाता है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि उनको पता चले कि उनका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या होगी, उनको बड़ा डिजाइन करके दिया जाता है। सिंबॉलिक के अंदर आपको पता है हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़ा जाता है, केस स्टडीज को, मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ केस स्टडीज को पढ़ा जाता है, जिससे हम लोग पढ़कर हम देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंडस्ट्री सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं, मतलब ग्राफ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पिछले 10 सालों की, 5 सालों के लेकर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट किया जा सकता है। और लैंग्वेज बेस्ड और एंटरप्रेन्योर्स क्या, वो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ये सारे मार्केटिंग मिक्स और स्वाट एनालिसिस कर कर मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये सारे एनालिसिस कर कर वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जो स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके स्टॉक स्वाट एनालिसिस पढ़ सकते हैं। तो सिंबॉलिक बेस तो मोस्टली थ्योरेटिकल बेस है, आपका इनेक्टिव और आइकॉनिक जो है दैट इज द स्टार्टिंग बेसिस। सो दिस इज द मेन 3 कोर मॉडल जिसके अंदर हम इंडस्ट्री एकेडमिया के लिंकेज को क्रिएट कर सकते हैं। बर्नर्स ने ये थ्योरी दी थी और इसमें ये काफी इफेक्टिव है कि हम इंडस्ट्री और एकेडमिया और एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह लिंक कर सकते हैं इसके। जैबिट्स ने जो है वो कोलैबोरेट किया था कि रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को कैसे प्रमोट करें, और एंग्रो कॉर्पोरेशन दे आर वर्किंग टुगेदर, और इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को काफी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंडस्ट्री लीडर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, एग्रो कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मनाए वहां जाते हैं, और एग्रीकल्चर के ऊपर मुख्तलिफ इनोवेशंस के ऊपर काम हो रहा है। इन तीनों लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं जैबिस्ट और एग्रो कॉर्पोरेशन। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसको हम लेकर आगे चल सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़कर जो है काम कर सकती हैं। सो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एकेडेमिया, इंडस्ट्री की नीड क्या है? फिर से अगेन इंडस्ट्री की नीड है कि वो उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए, वो ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ना कि उसके ऊपर नॉलेज दे सकें। कंपनीज को वैसे ही लोग चाहिए कि वो काम, दे कैन एग्जीक्यूट अ प्रॉब्लम, दे कैन एग्जीक्यूट अ टास्क। एकेडेमिया का रोल क्या है? वो स्टूडेंट को फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करता है, और साथ में उसका रोल ये होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी दे ताकि वो इंडस्ट्री की नीड को पूरा कर सके। एकेडेमिया अपने जो है वो करिकुलम को इस तरह फॉर्म करें कि उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करें। जिस तरह आपके पास ग्लोबल टेक कंपनीज हैं, वो वर्किंग विद यूनिवर्सिटी डिजाइन कोर्सेज दैट रिफ्लेक्ट रियल टाइम इंडस्ट्रियल नीड। डाटा कैंप इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, कोर्सरा इसकी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के शॉर्ट कोर्सेज किए जाते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होते हैं, इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब जो है हमारे फ्रेमवर्क कोलैबोरेशंस के, हमारे अदारे जिस तरह हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज किस तरह इंडस्ट्री के साथ अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं, हमारे पास म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में ये चलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, रिकग्निशन एग्रीमेंट। इससे हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, जिस तरह हार्वर्ड है, एमआईटी है, ये इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग रिकग्नाइज करते हैं, बल्कि इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट नहीं होते, पहले ही काफी इंडस्ट्री के लोग जो हैं उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज करके ले जाते हैं यहाँ से। एसपी हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो काफी कोलैबोरेशन एंड जो है वो की जाती है। इसके अंदर पहले हमारे पास आ जाता है एनडीए। एनडीए एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज। अगर दो पार्टीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं तो एनडीए वो साइन कर लेते हैं आपस में मिलकर, ताकि अगर उन आपस में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारे साथ कोई फैक्ट्री वाले काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ एक एनडीए साइन करेंगे कि अगर कोई भी फाइनेंशियल्स आप हमारे साथ शेयर करोगे, अगर हमारे टैक्स के स्टूडेंट्स के साथ या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के साथ, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे आगे। इवन के कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी अदारे के साथ आगे शेयर नहीं की जाएगी, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। और ये एनडीए साइन करने होते हैं ताकि हम जो है वो थर्ड पार्टी का, जो अपने इंडस्ट्री काउंटर पार्ट है, उनका ट्रस्ट हासिल कर सकें, ताकि वो हमें यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करता है कि किसके साथ इनका ट्रेड, इससे काफी ज्यादा जो है बातें हो सकती हैं। अगर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो एनडीए साइन करना जरूरी है, और एनडीए को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम कह देंगे जी हमारे स्टूडेंट्स सीखें, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को सीखने के लिए वो ये सारी चीजें करें। ठीक है, तो पर्पस इसका होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना, इनकरेज ओपन कोलैबोरेशन व्हाइल मेंटेनिंग प्राइवेसी, इट्स द पर्पस ऑफ दिस एनडीए। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें एनडीए को ना सिर्फ करना चाहिए इंडस्ट्री के साथ, बल्कि इसको सीखना भी चाहिए, इसको लिखना भी आना चाहिए हमें कि हाउ टू राइट एनडीए एंड हाउ टू इन्वॉल्व इंडस्ट्री विद इट। एमओयूज तो बहुत कॉमनली पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों पार्टी जो कोलैबोरेट करती हैं ना विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, मोस्टली विदाउट एनी ऑब्लिगेशन जो है वो कोलैबोरेट करती हैं। तो ये आउटलाइन करता है इंटेंशन ऑफ टू पार्टीज टू कोलैबोरेट, कि वो किस इंटेंशन के साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं फ्यूचर के अंदर। ये फॉर्मलाइज द जनरल टर्म्स एंड स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन। इसके अंदर बेसिकली हर एक इसका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, बस इसके अंदर ये होता है कि आपके जो है विटनेसेस होने चाहिए, मेन मेन पार्टी होनी चाहिए, मतलब अगर आपका कॉलेज है तो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होना चाहिए, वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो जॉइंट रिसर्च फंडिंग एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जॉइंट रिसर्च हो सकती है, एक्शन रिसर्च हो सकती है, हम अपने एलुमनाई को उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहां के अदारे के सम टाइम एमओयू साइन होते हैं कि एक अदारा हमारे पास आता है, वो कहता है कि जी हमारे एम्प्लॉयज को आपने ट्रेन करना है इन स्पेसिफिक फील्ड, तो हम उनके साथ एक एमओयू साइन करते हैं कि हम इतने लोगों को आपको ट्रेन करके देंगे। और उसके अलावा उनकी कोलैबोरेशंस मुख्तलिफ इवेंट्स पे हो सकती है। हम लोग एंटरप्रेन्योरल गाला के ऊपर जब भी करवाते हैं उसके अंदर हम इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करते हैं, हमारे एमओयू साइन है, मिजान बैंक के साथ एमओयू साइन है, मुख्तलिफ अदारों के साथ है, मुख्तलिफ सीईओज के साथ एमओयू साइन है। वो आते हैं, वो एज अ जजेस आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं, उनको वायबल बिजनेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर द वेरी, और ये एमओयू विदाउट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी साइन किए जा सकते हैं, मोस्टली विदाउट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ही साइन किए जाते हैं। इसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज और हमारी एक्सपर्टीज की कोलैबोरेशंस होती हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ पार्टनरशिप में हम एमओयू साइन करते हैं, हाँ इसके बाद भी एनडीए वगैरह साइन हो सकते हैं। तो क्रिएट्स अ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर डिटेल एग्रीमेंट्स, के फ्यूचर में हम क्या करेंगे, किस तरह कोलैबोरेट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स, मतलब क्लैरिफाई करता है क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं पार्टीज एक दूसरे के साथ, और कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस इसके अंदर नहीं होती। उसके बाद हमारे पास एमआरएज आ जाते हैं। एमआरएज एंड एन एग्रीमेंट in between parties ensures the recognition of academia qualification and standard। हमारे अदारे से कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है बाय द इंडस्ट्री, और ये रिकग्निशन जो है वर्ल्ड वाइड जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा एकेडमिया स्ट्रांग होगा। ग्रेजुएट्स मतलब गारंटी देता है ये ग्रेजुएट्स को एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के साथ कि जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चा पास आउट होगा या कंट्री से पास आउट होगा वो एक्नॉलेज किया जाएगा बाय अनदर। कॉमन इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जहां पर स्टूडेंट्स और रिसर्चर जो हैं वो जाते हैं, जिस तरह यहाँ से पास आउट स्टूडेंट जो है वो अगर किसी अदारे में जाएगा तो वो उनको, या फिर इंटरनेशनली किसी यूनिवर्सिटी किसके पास या कॉलेजेस के पास, जो उसको रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन को वैलिडेट करेंगे। तो इसके अंदर जरूरी ये होता है कि एकेडमिया के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा स्किल बेस की तरफ जाना शुरू कर दें थ्योरी को छोड़कर, तो समटाइम्स ये थोड़ा सा चैलेंज आता है हमें कि इंटरनेशनली रिकग्निशन कम हो जाती है अगर हम ज्यादा थ्योरी से हट जाएं। थ्योरी भी साथ लेकर चलनी है, स्किल भी साथ लेकर चलना है, ऐसे डेवलप करना है जो स्टैंडर्डाइज करिकुलम। स्टैंडर्डाइज करिकुलम एचईडी की रिक्वायरमेंट है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या हायर एजुकेशन जो हमारे कमीशन हैं वो यही चाहते हैं कि हम एक करिकुलम डिजाइन करें जो इंडस्ट्री की नीड भी पूरी करे, एकेडमिया की नीड भी पूरी करे, रिकग्निशन भी हो, लेकिन वो करंट नीड को, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होकर निकले, स्टूडेंट जब पास आउट होकर निकले, तो जब वो इंडस्ट्री में जाए तो सारी इंडस्ट्री उसको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकग्नाइज करे।
अगर वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाए तो इंटरनेशनल अदारे उसको रिकग्नाइज करें, उसके तालीम को रिकग्नाइज करें। तो ये एकेडेमिया के ऊपर इसका प्रेशर ज्यादा है इस चीज का, कि अगर उन्होंने अपने आप को रिकग्नाइज कराना है, अपनी क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज कराना है, तो हमारे जो अदारे के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो उनको वो करिकुलम पूरा करवाएं जो इंडस्ट्री की नीड भी पूरा कर रहा हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरा कर रहा हो एकेडेमिया के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि हम लोग इतने ज्यादा स्किल डेवलपमेंट में चले जाएं कि उनकी रिकग्निशन ना हो सके, उस डिग्री की रिकग्निशन ना हो सके, उस सर्टिफिकेट की रिकग्निशन ना हो सके, उस अदारे की रिकग्निशन ना हो सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे एग्रीमेंट्स के साथ के फैसिलिटेट। ये क्या करती है, स्टूडेंट्स की मोबिलिटी, स्टूडेंट जा सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, सर्व कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, अपने अपने अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं दुनिया के हर जगह पे जाकर। तो ऐसे करिकुलम्स को हमने डिजाइन करना है और हमने ग्लोबल कॉर्पोरेशन बढ़ानी है, ना सिर्फ एकेडमी या रिसर्च के अंदर एजुकेशन, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी ग्लोबल रिकग्निशन बढ़े। हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड्स यूएई में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कि जो एजुकेशन हम यहाँ से दें, बच्चा जाके स्ट्रेट अवे वहां पर उन अदारों को सर्व कर सके, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन अदारों की स्किल डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो ये एक जरूरी चीज है। एसपीए जो है वो सर्विस एक्सपेक्टेशंस हैं। ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेवल ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टीज इन अ पार्टनरशिप। इसके की फीचर्स क्या हैं? सेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, टाइमलाइंस, डिलीवरेबल्स। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। सर्विस एक्सपेक्टेशंस के अदारा हम लोग इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही। यूज टू डिफाइन द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, एक्सेस ऑफ लैब रिसोर्सेज, रिसर्च डाटा, कंसल्टिंग सर्विसेज। लाइक रिसर्च डाटा का मतलब ये होता है कि हमारे कई स्टूडेंट्स सर्वे एनालिसिस करते हैं, और सर्वे उनको इंडस्ट्री से लिंक क्रिएट करने के लिए हमें वहां पे सर्वे करवाने पड़ते हैं। हम मुख्तलिफ एसपीए साइन कर सकते हैं, सर्विस एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं कि इंडस्ट्री में जब भी हमारा स्टूडेंट आएगा उसके सर्वे एनालिसिस में उनकी हेल्प की जाएगी। ना सिर्फ हेल्प की जाएगी बल्कि रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह हमारे जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंडस्ट्री से या कोई भी इंडस्ट्री से अगर यूनिवर्सिटी की तरफ कोई आता है तो लैब रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। दीज आर द एक्सपेक्टेशंस। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हम लोग जो हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम लिस्ट डाउन कर लें कि अदारा क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्या डिलीवरेबल प्रोवाइड करेगा और किस टाइमलाइन में प्रोवाइड करेगा। और अदारा भी इंडस्ट्री से सर्विस एक्सपेक्टेशंस ले सकता है कि वो किस कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट करवाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री वाले आकर ना सिर्फ उनको जज करेंगे बल्कि उन स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करेंगे, उन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे इंटर्नशिप्स की पॉसिबिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा उनको जॉब्स प्लेसमेंट प्लेसमेंट भी देंगे अगर कोई स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस एक्सपेक्टेशंस उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहा है। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस हम उनके साथ एसपीएस भी साइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे? गैप फिल होगा जो इन चैलेंजेस हैं थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान। जरूरी ये है कि सिर्फ स्किल पे ना लगे, थ्योरी को डेवलपमेंट आपका नॉलेज बेस क्रिएट करता है। अदारे और हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बेसिकली नॉलेज जनरेशन के ऊपर, नॉलेज क्रिएशन के ऊपर एट द एंड हमारी स्टेज ये होती है कि जिसके अंदर स्टूडेंट खुद से नया नॉलेज जनरेट कर सके, नए आइडियाज को जनरेट कर सके। उससे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उससे पहले उसको, चूंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी भी ये कहता है कि पहले आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, पहले आप डिफाइन करें चीज़ों को, डिफाइन करने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फिर वो जो है स्टूडेंट उसके अंदर लर्निंग करे, यूटिलाइजेशन करे, यूटिलाइजेशन के बाद वो क्रिएट करने की स्टेज तक आए। तो ये बड़ा जरूरी है। अब इसमें अगर हम लोग प्रैक्टिस सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे रहेंगे तो जो इंडस्ट्री अभी ऑफर कर रही है वो सिर्फ वो सीखेगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट नॉलेज है, उसको वो जनरेट नहीं कर सकेगा।
तो स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, थ्योरी डेवलपमेंट भी जरूरी है हमारे लिए। फैसिलिटेट इनोवेशन, रिसर्च, जिस रिसर्च की वजह से हम नई टेक्नोलॉजी साइंसेस वाले नई चीजें जनरेट करते हैं, नए पेटेंट्स जनरेट करें अदारे, और वो इंडस्ट्री के अंदर लेकर आए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी नई टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्री में लाकर एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो एक जॉब क्राइटेरिया इकोसिस्टम भी हम लोग एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बनाएं। अब एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जब बनेगा, एज आई सेड बिफोर, that when entrepreneurs create, they create jobs as well. They create jobs as well, and that contributes to economic development. Factor of productions आपके बहुत ज्यादा बढ़ते हैं अगर आपका मुल्क में एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग टेक पार्क्स को क्रिएट करें, इनोवेशन हब्स को क्रिएट करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो ऑलरेडी हायर एजुकेशन के अंडर काफी जो है इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो उसके अलावा टेक पार्क्स को भी बढ़ावा देना चाहिए और इनोवेशन हब्स को भी हमें बनाना चाहिए। तो की फैक्टर्स कौन से हैं जी फॉर इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस? तो सक्सेसफुल इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज क्रिएट करना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि हमारी कम्युनिकेशन बढ़ सके। इंडस्ट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव अदारे के साथ लाजमी जुड़ना चाहिए, ऐसे बोर्ड बने चाहिए, ऐसी कमेटीज बनी चाहिए जिसके अंदर इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हों। और हमारे जो है एकेडेमिया से लोग जो हैं उनके पास नहीं होना। और उसके बाद शेयर्ड विजन एंड गोल्स, इंडस्ट्री के गोल्स क्या हैं और एकेडेमिया के विजन क्या है, वो इंडस्ट्री के विजन के साथ एकेडेमिया के गोल्स को इंटरेक्ट करवाना, उनके साथ मैचअप करवाना। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जिसकी बेस के ऊपर मैंने आपको सारे एग्रीमेंट अभी बताए, एमओयू, एनडीए, एसपीएस, ये सारे एग्रीमेंट क्या क्रिएट करते हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी आती है अदारों में, इंडस्ट्री में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अगर हम लोग इंडस्ट्री इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंडस्ट्री की अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। सबसे जरूरी ये है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, ना सिर्फ अदारों का बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी गवर्नेंस सिस्टम, कि किस तरह हम पॉलिसी मेकिंग क्या कर रहे हैं, गवर्न कैसे कर रहे हैं, अदारों को बेहतर कैसे बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स को बेहतर कैसे बना रहे हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एक चीज को शुरू करें तो उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि कौन कौन अकाउंटेबल किस किस स्टेज पे होगा, कैसे होगा। अगर एक चीज शुरू की है तो उसको एग्जीक्यूशन की तरफ, उसके डिलीवरेबल लाजमी होनी चाहिए। तो सक्सेसफुल इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस के लिए अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे ने काम किया है, एक रिसर्चर ने काम किया, उसको प्रॉपर वैल्यू दी जाए। अगर उसने इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उन लोगों को लाजमी वैल्यू दी जाए जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर काम करके उस चीज को सॉल्व किया है न। इस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, प्राइवेसी को मेंटेन भी करना चाहिए कि अगर किसी का पेटेंट है तो उसको सिक्योर भी करना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे वो सिक्योर हो सके। ठीक है। और फंडिंग रिसोर्सेज भी लाजमी, कि जब इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंक हो और एकेडेमिया एक काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट में, तो जरूरी है कि इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि उसने अपने साथ लिखे हुए जो हमारी इकोनॉमी में जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, ना सिर्फ उनकी गवर्नेंस को बेहतर करे, डिलीवरेबल्स अगर हम लेकर आते हैं तो हमें भी फंडिंग और रिसोर्सेज लाजमी दिए जाएं। और इसके अंदर इंडस्ट्री भी है, जिस तरह आकर वो यहाँ पर आकर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, ज्यादा ज्यादा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को फंड करे। क्योंकि ये जो है ये अदारों को हमें सेल्फ सस्टेन करने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ फीसिस से ही नहीं जनरेट करेंगे, जब हमें एक एक्स्ट्रा माइल आगे जाना है तो उसके अंदर रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से हम एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को शुरू कर सकें, एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू कर सकें, एक इनोवेशन हब को शुरू कर सकें।
तो उसके अंदर जरूरी ये है कि लिंकेज के साथ साथ कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाए, जिससे हमारा ये इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज जो है वो ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होगा। चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? कल्चरल डिफरेंसेस को खत्म करें। एकेडमिया ऑफन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च व्हाइल इंडस्ट्री लुक एट अ इमीडिएट सॉल्यूशन। तो गैप कैसे फिल कर सकते हैं? एकेडमिया फ्रीडम दी जाए, इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। कि हम लोग कैसे इसको करें कि जी वहां पर एकेडमिक फ्रीडम भी हो। फ्रीडम कैसे? कि वहां के लोग, वहां के स्टूडेंट्स जब कोई एक्टिविटी करें तो वहां से सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करें वहां से सपोर्ट मिले। और एकेडमिया में भी जो उनकी इमीडिएट सॉल्यूशन है ना सिर्फ वो दिए जाएं, बल्कि उनको भी ये चाहिए कि वो एक कल्चरल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाए इंडस्ट्री को, कि हमारी जो रिसर्च है आपको 5 साल में 10 साल में इस स्टेज पर लेकर जाएगी, ऐसे आप डेवलप होगे। जरूरी नहीं है, देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक इवन। आप जब शुरू करते हो तो आप लॉस से स्टार्ट करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्रेक इवन पे जाते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर एक चेंज लेकर आना है तो चेंज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आपको करंट स्किल्स चाहिए, लेकिन आपको 10 सालों तक, 15 सालों तक एक पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर चाहिए, पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एकेडमिक एकेडमिक रिसर्च को लेकर आना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर। कम्युनिकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे कि पहले बात हुई कि क्रिएटिंग चैनल्स टू इफेक्टिव एक्सचेंज बिटवीन एकेडमिया इंडस्ट्री। गोल्स को अलाइन करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अलाइन करना है हमने। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑनरशिप इश्यूज, मतलब क्लैरिफाइंग आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन कोलैबोरेटिव रिसर्च, और अवॉइड करने चाहिए इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज, रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू कोलैबोरेशन, इससे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं एकेडमिया लिंकेज के दरमियान। रिसोर्स शेयरिंग आती है, लॉट्स एक्सेस ऑफ फंडिंग, expertise, technology fostering and environment ripe for the breakthroughs and advancement. उसके बाद real world impact, industry academia partnership can be seen through successful projects transforming theoretical research into practical solutions. Then how can we bridge the gap for future generations? It's very important. Education and skill development, internship, mentorship opportunities create करें, hands on experience in real world industries लाजमी होना चाहिए। कि हमारे जो अब की इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह हम लोग टैकल करेंगे, बच्चों के साथ स्टूडेंट्स को वैसे मेंटोरशिप प्रोवाइड करें, उनके साथ इंडस्ट्री के साथ अपॉर्चुनिटीज, मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज के अंदर इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें। करिकुलम को ऐसे डेवलप करें जो इंडस्ट्री नीड के साथ भी मीट, ना सिर्फ उनके शॉर्ट टर्म नीड बल्कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करे, वर्कफोर्स की डेवलपमेंट हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव क्रिएट करने चाहिए ताकि हम लोग मार्केट डिमांड्स के मुताबिक अपने बच्चों को तैयार करें। इनोवेशन हब्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए स्टार्टअप्स बिजनेस के लिए। उसके बाद कल्टीवेटिंग द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एक किस्म का, कि स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स to take risk and think the entrepreneur exploring ways to commercialize their ideas। मतलब मुख्तलिफ, आजकल तो बहुत आसान है, एआई के थ्रू और ई कॉमर्स के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ इंडस्ट्री में जाएं, और बल्कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट करें उनके लिए। सपोर्ट इनिशिएटिव्स लाइक इनोवेशन कंपटीशन, ठीक है, हैकाथॉन्स, ये मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस चैलेंजेस के जो आपके वो हैं कॉम्पिटिशन्स हैं वो करवाए जाएं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप किया जाए। फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, मतलब द डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमी इज पुशिंग इंडस्ट्री टू सीक इनोवेशन सॉल्यूशन। एकेडमिया जो है वो नॉलेज, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को देती है, इसकी कोलैबोरेशन क्रूशल है कि फ्यूचर सक्सेस कैसे क्रिएट की जाए। जबकि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज जो है वो हम लोग एक आइडियाज को हम ब्रिज करें, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, रिसोर्सेज एंड स्किल्स के
दोनों तरफ से एक किस्म का ब्रिज होना चाहिए जिसके अंदर एक्सचेंज हो आइडियाज, एक्सचेंज हो रिसोर्सेज और एक्सचेंज हो स्किल्स, जिसकी वजह से हमारा ये लिंकेज जो है वो इनहेंस होगा और बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आपको पता है अब एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ये रिसर्च और इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं। बिग डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडस्ट्री में तो बिग डाटा की बहुत ज़्यादा नीड है कि वहां पर उसको मैनेज कैसे किया जाए। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स भी यूज हों कि हम कोलैबोरेशन बढ़ा सकें इंडस्ट्री एकेडमिया में। सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना है जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एड्रेस करें, एनर्जी चैलेंजेस को एड्रेस करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थ्रू जॉइंट रिसर्च करें। इंडस्ट्री की भी नीड है, एकेडमिया की भी नीड है कि वो इस पर रिसर्च करें, और स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे किस तरह एनर्जी सेव कर सकते हैं, क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं, और नए बिजनेस आइडियाज को किस तरह लेकर आया जा सकता है। और इसके अंदर माइंडसेट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स का, ना सिर्फ इंडस्ट्री का, बल्कि क्लाइंटल का भी। इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। और इसके अंदर रोल जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट इज प्लेइंग इट्स रोल टू प्रमोट दीज इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। और इसमें अब जरूर ये है कि हम लोग भी डेवलप करें अपने ऐसे आइडियाज को लेकर आए, ऐसी रिसर्च को लेकर आए, ताकि आगे जाकर हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें। ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज, ग्लोबल नेटवर्किंग फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, इंटरनेशनल एकेडमिक एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स टू सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस, पॉलिसी और फंडिंग सपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दिस इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, और ये इनोवेशन हब को क्रिएट करना जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। रिसर्च ग्रांट्स को प्रमोट करना, ज्यादा रिसर्च ग्रांट दें, और ऐसी रिसर्च ग्रांट दें जो एक्शन रिसर्च हो, जिसके अंदर डेफिनेटली इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन लाजमी शामिल हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो, ठीक है, और इंक्रीज फंडिंग फॉर जॉइंट इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टअप्स। ये है जी की ड्राइवर फॉर फ्यूचर लिंकेज ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस। विजन क्या है? विजन फॉर द फ्यूचर, ऑटोमेशन और डाटा शेयरिंग का जी विजन है। ये इंडस्ट्री का भी विजन होना चाहिए, एकेडमिया का भी विजन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम डाटा ऑटोमेशन की तरफ, बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ जाएं, और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन एफर्ट को कम किया जाए, और इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपने करिकुला को भी ऐसे डेवलप करें। बैरियर्स ऑफ एंट्री जो है, हाँ, बैरियर्स ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें कम करना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। More dynamic and fluid partnerships, short-term projects alongside long-term collaboration addressing specific industry challenges। बहुत अच्छा जी आइडिया ये कि हमें अपने फ्यूचर के विजन के लिए, जो पीछे जो है कि इंडस्ट्री का फोकस है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर, एकेडमिया का फोकस है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर, तो हम लोग अगर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कर लें जो कि लॉन्ग टर्म लर्निंग दे दें, तो ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज क्रिएट होगा। ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क, ना सिर्फ पाकिस्तान से या इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ से हमारी जो है वो सोल्यूशन आने चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेवलप इकोनॉमीज के साथ ऐसी कोलैबोरेशन या ऐसी पार्टनरशिप्स करें जिसके अंदर हमें काफी चीजों के चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकें। जैसे जितने पेंडेमिक्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज आता है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है, उनको ठीक करने के लिए हम कोलैबोरेशंस करें। एंटरप्रेन्योरशिप सेंट्रिक एजुकेशन, अब यूनिवर्सिटीज कॉलेज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, और जो कि हम काम भी कर रहे हैं काफी अरसे से, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे ट्रेनिंग्स करवाएं, ऐसे काम करें, ऐसे करिकुलर डिजाइन करें। क्योंकि अब आप लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का 2 क्रेडिट आवर का यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो कोर्स लाजमी करार दे दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इट्स अ जनरल एजुकेशन कोर्स। So it's a very good step towards the development of the entrepreneurial culture, entrepreneurial mindset of the students, and also it helping the industry as well। जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम बाहर निकलें, जोहर टाउन की लाइन में जाए, तो कितने स्टार्टअप्स हमें नजर आते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बन रहा है, लेकिन उसकी जरूरत यह है कि वो अब बड़े लेवल पर जाएं, मतलब अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरफ जाएंगे स्टार्टअप्स। ये एक चीज क्रिएट करने की जरूरत है, अपनी स्टॉक एक्सचेंज को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, जिससे हम लोग जो है वो इस लिंकेज को भी बढ़ा सकें और इसको आगे भी। तो पाथ फॉरवर्ड क्या है जी? टू शेप द फ्यूचर, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इंस्टीट्यूशन मस्ट embrace collaborations. The success of future industries depends on research driven innovations powered by effective industry academia linkages.
By fostering stronger partnerships, we can ensure sustainable growth, innovation, and entrepreneurship for future generations. That is the path forward for our students. So, if anyone has any question, I think we have 5 minutes. So this is all about industry academia linkages and what काइंडली we किसी need के to shape the future. जी काइंडली किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करें. हसन नदीम, आपका माइक ऑन है. अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर वालेकुम आपने दिया अस्सलाम. और वाकई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लिंकेज डेवलप किए जाएं। तो काइंडली सर इसमें बता दीजिएगा कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि आजकल बीएस प्रोग्राम है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता कि स्कूलिंग से ही थोड़ी बहुत बेस बनाई जाए, जहाँ पर बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने एकेडमिक कंपनीज में जाना है और थोड़ी बहुत नाव हाव लेनी है, जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स फिर आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो एक उनकी बेस बनती चली जाए। तो क्या इस तरह का कोई प्लान है या ये लाजमी है कि जो मास्टर्स लेवल या ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करने के बाद ही उनको जाना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ऑलरेडी हो रहा है क्योंकि हम एज अ यूनिवर्सिटी एजुकेशनिस्ट हम लोग जाते रहते हैं। जिस तरह अब आपका इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम है जहां पर ओ लेवल और ए लेवल की एजुकेशन है ना, वो शुरू से ही शुरू कर देते हैं बच्चों को डेवलप करना। हमारा जो यहाँ पर कल्चर है वो मैट्रिक सिस्टम है, तो मैट्रिक सिस्टम तक हम लोग फोकस करते हैं साइंसेस के ऊपर, फिर आगे जाके हम लोग, जबकि जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है अगर आप देखेंगे कि कोलैबोरेशन बढ़ाई जा सकती है, इसलिए मैंने वहां पर ना 3 टीयर्ड मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो आपसे मैंने डिस्कस किया है, उसके अंदर इनएक्टिव एंड आइकॉनिक, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे हम शुरू कर सकते हैं। जो हमारा सिंबॉलिक लेवल का कोलैबोरेशन है, जो सिंबॉलिक लेवल का नॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चलता है। अगर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च होती है, ये सारा कुछ होता है, वो आप लोग डेफिनेटली उसको समझते हैं, लेकिन इनएक्टिव एंड आइकॉनिक जो है ये हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे। और मैंने देखे हैं कई ऐसे इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स हैं जो कंपटीशन करवाते हैं बिजनेस आइडियाज के ऊपर, एंड स्टूडेंट्स हैव वेरी गुड बिजनेस आइडियाज। हालांकि वो इनएक्टिव और आइकॉनिक बेस्ड भी होते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टार्टिंग एक्चुअल बिजनेस। जबकि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अगर कोई इंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट है ना, वो होना चाहिए एक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर, जिसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट आए और वो इस तरह कोलैबोरेट करें। सो ये जरूरत है हमारी। इस आज का टॉपिक भी इसी वजह से था कि हम लोग चूंकि अब इस यूनिवर्सिटी लेवल पे तो काफी काम हो रहा है ऑलरेडी, अब इसमें जरूरत यह है कि हम लोग, क्योंकि आप लोग जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं, जब हमारा 9th और 10th आता है, हमारा टोटल फोकस साइंसेस के ऊपर होता है, जबकि ओ ए लेवल इस तरह डिजाइन नहीं है। ओ ए लेवल्स का डिजाइन जो डिफरेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल वहां पर ही, और अगर आप देखेंगे ओ ए लेवल्स पर ही अकाउंटिंग के और बिजनेस के सब्जेक्ट्स कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे होते हैं। सो हमें अपने करिकुला को थोड़ा सा डिफरेंस करने की जरूरत है। स्कूल लेवल पे तो बात नहीं कर रहे, हम कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज में आके हम आईकॉम लेवल पे, आईसी और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को दूसरे साइंसेस के सब्जेक्ट के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग। है चेंज, बड़ा चेंज है, लेकिन आप ये देखें कि आपके जो अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो क्या इस जरूरत को पूरा कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट ऐसे तैयार हो रहा है कि वो मार्केट में जा सके? सिर्फ कॉलेज लेवल का स्टूडेंट निकल के मार्केट में जा सकता है, वो सिर्फ उस तरह ही जा सकता है कि वो किसी स्किल डेवलपमेंट का या कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर ले तो फिर वो कर सकता है, अदरवाइज हमारा करिकुला अभी वो ऑफर नहीं कर रहा। सो मैं कर चुका हूँ, और ये आइडिया भी वहां से आया, ये जो इनएक्टिव और आइकॉनिक है, ये चूंकि कुछ स्कूल्स लेवल पर हो रहा है ऑलरेडी, और वो स्टूडेंट्स बड़े ग्रूम्ड होते हैं, बड़े अच्छे ग्रूम्ड होते हैं, तो हमें भी जरूरत है कि हम अपने जो ये पब्लिक के कॉलेजेस हैं यहाँ पर भी इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे हम उनको बेहतर नॉलेज दे सकें। और सिर्फ फील्ड वाले नहीं, जो दूसरी फील्ड के लोग हैं वो भी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो हर एक ने समझना है,
किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है, कोई फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट बनानी है, किसी ने साइंसेस में काम करना है, अल्टीमेटली उसने प्रोडक्ट अपनी मार्केट में लेकर आनी है। और उसे ये थोड़े से बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हाउ टू राइट अ पेटेंट, हाउ टू डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ टू डू अ सप्लाई चेन, कि मैंने अपनी प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री से है, कहाँ पर। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि केमिकल का बिजनेस कितना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, और जो लोग इसको समझते हैं वो इसमें कितना आगे जाते हैं। अब केमिकल का बिजनेस टोटली साइंसेस की डोमेन है, लेकिन आगे जो उसको सेल एंड परचेज करना, उसके लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए, स्टूडेंट्स को आनी चाहिए ये सारी चीजें। जी सलीमुल्लाह साकिब साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी आपने हाथ खड़ा किया सलीमुल्लाह साकिब साहब, अगर आप आपका माइक ऑन है माइक। सलीमुल्लाह साकिब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक स्टूडेंट जो हमारे पास बीएस प्रोग्राम में है और वो फर्ज करें बीएस उर्दू है, बीएस इंग्लिश है, जैसे चलिए बीएस इंग्लिश टू सम एक्सटेंट तो इसके साथ हो जाएगा, लेकिन जो हम बीएस इस्लामियात है या जो लैंग्वेज में या अरेबिक में करवा रहे हैं, उनको हम इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से कैसे लिंकेज वो बना सकते हैं। और हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज पे अगर आए तो इंडस्ट्री जाहिर है लिमिटेड है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकती है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह गाइड करें कि ये चीजें इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनका कोई ना कोई ट्रैक या रास्ता बन सके। थैंक यू सर। और एक और सर, मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये हमारी पूरी ट्रेनिंग में, मैम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट किया और आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, लैंग्वेजेस का डेफिनेटली देयर इज सम चैलेंजेस, लेकिन आपने अगर कोई किताब लिखी है, कोई शायरी लिखी है, कुछ भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपने किया है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट तो मार्केट में जानी है। आप ट्रांसलेशन करते हो, आप किसी कोई भी नीड पूरी करते हो, लेकिन आपको ये देख लेंगे आपने आज, अब मैंने पिछले दिनों एक एआई का प्रोडक्ट देखा था जो काफी लोग यूज कर रहे थे, जिसके अंदर वो एआई जो था वो उर्दू शायरी लिख के दे रहा है। अब वो एआई का जो टूल है वो डिजाइन जब किया किसी ने, तो उसने उसको कुछ सिखाया होगा, कुछ फीड किया होगा। तो प्रोडक्ट हर एक चीज में है, सेल करना है आपने कुछ। आप जब किसी को कुछ सिखाते हो तो उसको इंडस्ट्री के लिए आप किस इंडस्ट्री में लेकर जा रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में लेकर जा रहे हो, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में लेकर जा रहे हो, आपने उस इंडस्ट्री को देखना है कि हम किस इंडस्ट्री से लिंक कर रहे हैं। इंडस्ट्री डेफिनेटली आपकी जो है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। आप मुख्तलिफ लोगों को ट्रांसक्रिप्शन में उसमें हेल्प कर सकते हो, उसके ऊपर आप एक अपना इदारा भी बना सकते हो। आप जो है वो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस भी तो होते हैं, और भी काफी जगह हैं जहां पर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता है कि लैंग्वेजेस वाले कहाँ पर फिट बैठते हैं। अब जब वहां पर फिट बैठते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, सर्विसेज सेल हो रही हैं। ठीक है, अब एक एक मार्केटिंग वाला बच्चा है, अगर आप उसे देखें तो उसने क्या करना है, एड बना के देना है और उसको वो चार्ज करता है। अब उर्दू और इंग्लिश वाला अगर कोई बच्चा है तो वो क्या करके देगा, किसी को ट्रांसलेशन करके देगा, वो अपनी सर्विसेज को मार्केट करेगा। वो कहाँ मार्केट कर सकता है, कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कहाँ पर जाके वो अपनी, बेसिकली अगर आप देखें तो गिग इकोनॉमी भी इसको कहते हैं, गिग इकोनॉमी, कि इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। आप उनको लेकर जाएं वहां पर, उनको बताएं कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, वहां पर आप कैसे कैसे सर्व कर सकते हो, किन लोगों को सर्व कर सकते हो, उस अदारे में कौन कौन लोग हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उधर जाकर लोग जो हैं वहां पर सर्व करते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि वेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर। ये हमारा काम है कि हम उनको किस तरह लेकर जा सकते हैं। ये बहुत उर्दू की खिदमत करना, ये तो हमारा फर्ज बनता है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ इंग्लिश किताबों को उर्दू में कन्वर्ट करना, ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी आप अपना माइक करें और करें सवाल। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। जी इमरान शाह डॉक्टर साहब, मोहम्मद। मेरा ख्याल है कि टाइम अप हो गया है, तो अगर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इमरान शाह साहब, डॉक्टर इमरान। जी इमरान शाहिद, आपका माइक ऑन है।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप फरमा रहे थे कि अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, अपने तख्लीकी सलाहियतों को आगे ले गए। लेकिन सर आजकल तो लोगों को किताब से रुझान ही खत्म होता जा रहा है, तो बंदा क्या चीज लेके आया आगे? रुझान और इंटरेस्ट तो बनाना हमारा काम है ना बच्चों का। किताब पढ़ने का रुझान नहीं रहा सर। जी किताब के जी, साथ मोहब्बत तो हमने क्रिएट करनी है ना बच्चों की। बिल्कुल सही तो जब फरमाया, सही। किताब के साथ मोहब्बत होगी तो साथ आपने ये भी बता देना कि ये जो आप पढ़ रहे हो इसका इंडस्ट्री में क्या फायदा है आपको। और हम्म, मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना ग्रेजुएट करके, तो जब जी वो जी, एमबीए में बैठते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि एमबीए में तुम किस किस चीज को सर्व कर सकते हो, किस इदारे को सर्व कर सकते हो। जब वो कहते हैं हमने ग्रेजुएट कर ली, 16 साल पढ़ लिया, अब हमें, मैं तो फीमेल यूनिवर्सिटी से हूँ, यहाँ पे तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है। हम तो हर साल ब्रेन ड्रेन के चैलेंज से गुजरते सही, हैं। हर साल हम 40 इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, और हमारे 50 के करीब प्रोजेक्ट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। बच्चों के साथ हमें इस तरह जी बात जी करनी पड़ती है कि उनको देखे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो बगैर फायदे के ना हो। हम जब इस दुनिया में आए हैं जी तो जी, रब ताला ने भी कहा नेकी करोगे जन्नत मिलेगी, वो हमारी नेचर है। हमें हर चीज जो है वो चाहिए, इन रिस्पॉन्स हमें मिलेगा क्या। जब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको जब पढ़ाएंगे तो उसको बताना है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। जब आप शुरू में ही उसको आउटकम बता देंगे तो वो कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा एट द एंड, कहीं ना कहीं जाके जी जी, मिलेगा। नॉलेज इनहेंसमेंट, अब मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा कि मैं अपने नॉलेज को इनहेंस करूं। जब नॉलेज को इनहेंस करना होता है तो सक्सेस साथ ही आती है। तो उसमें आपको कहीं से भी हेल्प मिले, आप उनको बताएं कि जनाब ये आपका आउटकम होगा। अब हम लोग जब बच्चों जी को लेकर आते हैं एमएस और एमबीए प्रोग्राम में, हम कहते हैं कि आप लोग हायर ही 16वें ग्रेड से 18वें ग्रेड में होगे अगर आप गवर्नमेंट अदारे में जाते हो। अगर आप बीबीए करोगे, बीएस करोगे, तो आप 14वें ग्रेड तक हायर होगे। तो ये चीजें हम उन्हें जी, बताते रहते हैं। अब अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो एमबीए और ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आपने कहना जी जी किताबों से क्या मिलेगा आपको, डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा। आप जब वो पढ़ोगे तो आपका जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री में जाके आप लोगों को पहले दिन ही जब इंटरव्यू होगा तो आपकी किताबी नॉलेज देखा जाएगा। आपका स्किल जी, तो नहीं देखा जाएगा, स्किल तो बाद में देखा जाएगा। कौन अच्छा परफॉर्म बिल्कुल, करता है, कौन बुरा परफॉर्म करता है, वो तो बाद में देखा जाएगा। ये सारी चीजें हमने बतानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बता भी रहे हैं और आगे भी बताएंगे। जी नॉलेज अब थोड़ा चेंज होता जा रहा है। अब लोग जी, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें उसको लेकर आना है यहाँ पर। तो बिल्कुल कोशिश बिल्कुल, करें कि अपनी हम अपने टीचिंग पेडागोजी में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चों को हमारे जी अंदर जी, भी हमारे कोशिश कंधों किया, पे बोझ ना नजर आए। एक्चुअली उस्ताद एक ऐसी चीज है जिसके कंधों पे स्टूडेंट को बोझ नजर आना शुरू हो जाता है। वो बोझ हल्का करें और उसके बाद उनको पढ़ाना शुरू करें। वो आपसे इंस्पायर होके ही आके इंडस्ट्री में जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला जी। शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम सॉरी मैं और क्वेश्चन नहीं ले सकता, अगला लेक्चर भी शुरू होना है। सो थैंक यू सो मच। जी मैडम आप इफ यू टेक अप फ्रॉम हियर। जी थैंक यू वेरी मच सर। अब आप रैप अप करते हैं, हम इस सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके मैडम, अल्लाह हाफिज।
शाम को मैं नीरा आप स्टार्ट कर सकती हैं।